ایک طرف 10,000 جانثاروں کا خاموش لشکر اور فتح مکہ کا سب سے بڑا راز، اور دوسری طرف اپنوں کا ہی لکھا ایک خط جو ہزاروں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خوفناک غلطی کی جس نے مدینہ منورہ کی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو یہ خط کسی منافق نے نہیں بلکہ جنگ بدر کے ایک عظیم صحابی نے آخر کیوں لکھا؟ وہ خط ایک عورت کے پاس ایسی جگہ کہاں چھپایا گیا تھا جہاں کسی مرد کی نظر نہیں جا سکتی تھی، اور پھر صحرا میں گھوڑوں کی وہ خوفناک دوڑ کیسے شروع ہوئی؟ تاریخ کا رخ موڑ دینے والا یہ سنسنی خیز واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اور آئیے چلتے ہیں 8 ہجری کے مدینہ منورہ میں، جہاں ایمان اور کمزوری کی یہ لرزہ خیز جنگ لڑی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سن 8 ہجری۔ پورے عرب میں بظاہر امن تھا، کیونکہ مکہ کے قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن مکہ والوں نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک بھیانک غلطی کر دی۔ انہوں نے بنو خزا کے نہتے لوگوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جس نے پورے مدینہ میں ایک خاموش طوفان برپا کر دیا۔ فرمایا، ہتھیار تیار کرو، تلواریں تیز کرو، گھوڑوں پر جینے کس لو۔ لیکن منزل کون سی ہے؟ کس پر حملہ کرنا ہے؟ یہ کسی کو نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ابتدا میں ہدف کا علم نہیں تھا۔ کچھ صحابہ سوچ رہے تھے شاید شام کی طرف جانا ہے، کچھ کا خیال تھا نجد کی طرف۔ جنگ حکمت عملی کا یہ عالم تھا کہ سختی سے حکم تھا کہ مدینہ سے کوئی چڑیا بھی باہر پر نہ مارے جو خبر لے کر جائے۔ مدینہ کے تمام بیرونی راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، ایک مکمل ناکہ بندی کر دی گئی۔ فضا میں اتنا تناؤ تھا کہ رات کے سناٹے میں تلواروں پر دھار رکھنے کی آوازیں دلوں کو دھڑکا رہی تھیں۔ اسی دوران اس سخت ترین پہرے اور راز کے بیچ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خوفناک وسوسہ پیدا ہوا۔ یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، یہ بدری صحابی تھے، یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی۔ لیکن انسان چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کبھی کبھی بشری کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حاتب کا تعلق قریش کے کسی بڑے اور طاقتور قبیلے سے نہیں تھا۔ ان کے بیوی بچے، ان کا خاندان، ان کا مال و اسباب مکہ میں بالکل بے یار و مددگار تھا۔ باقی بڑے صحابہ کے تو رشتہ دار مکہ میں تھے جو ان کے خاندان کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن حاتب کا وہاں کوئی سرپرست نہیں تھا۔ شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک شفیق باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ حاتب، اگر جنگ چھڑ گئی اور قریش کو پتہ چلا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں ہے تو وہ غصے میں تیرے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو انہیں کیسے بچائے گا؟ دل کے اس خوف نے ایک غلط فہمی کو جنم دیا۔ حاتب نے سوچا، اگر میں قریش کو محض اتنا بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں تو قریش مجھ پر اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی جان بخش دیں گے، اور ویسے بھی میرے بتانے سے اللہ کے رسول کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا ہی۔ یہ ایک خوفناک فیصلہ تھا۔ اسلامی ریاست کے قانون کے مطابق یہ سیدھی سیدھی ریاست سے غداری تھی۔ حضرت حاتب نے رات کے اندھیرے میں کانپتے ہاتھوں سے ایک خط لکھا۔ میزان باتب بن ابی بلتع بنام قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر تم پر آ رہے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح چھا جائے گا اور سیلاب کی طرح بہا لے جائے گا، ہوشیار ہو جاؤ۔ خط لکھا گیا، لیکن اب یہ موت کا پروانہ مکہ کیسے پہنچے؟ مدینہ میں ان دنوں مکہ سے ایک گانے والی عورت آئی ہوئی تھی جس کا نام سارا تھا۔ وہ پیسے مانگنے آئی تھی اور اب واپس مکہ جا رہی تھی۔ حضرت حاتب نے اسے خاموشی سے بلایا، اسے 10 دینار اور کچھ کپڑے انعام میں دیے اور کہا، یہ خط چھپا کر مکہ لے جاؤ، سرداروں کو دو، لیکن خبردار مدینہ کے پہرے داروں کو پتہ نہ چلے۔ سارا ایک چالاک عورت تھی۔ اس نے وہ خط لیا اور اسے چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو انتہائی محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں کا جوڑا کھولا، خط کو فولڈ کر کے بالوں کی جڑوں میں بالکل اندر کر کے رکھا اور اوپر سے دوبارہ سختی سے بال گوند لیے۔
अब कोई मर्द उसकी तलाशी इस हद तक नहीं ले सकता था। वो अपने ऊंट पर बैठी और मदीना की खुफिया पगडंडियों से होती हुई खामोशी से निकल गई। हातिब मुतमईन थे कि काम हो गया, मेरे बच्चे बच जाएंगे, लेकिन हातिब ये भूल गए थे कि उनका मामला उस नबी से है जिसकी आंखें सोती हैं मगर दिल जागता है, और जिसके पास 7 आसमानों के ऊपर से खबरें आती हैं। जैसे ही वो औरत मदीना की हुदूद से निकलकर सहरा में पहुंची, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हो गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि या रसूल अल्लाह, आपका राज इफ्शा हो गया है। हातिब ने ख़त लिखा है और एक औरत वो ख़त लेकर जा रही है। वो इस वक्त रोज़ा खाक के मकाम पर पहुंची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने 3 सबसे ख़तरनाक और तेज़ रफ्तार शाह सवारों को तलब किया, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत मिक़दाद बिन असद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मिशन दिया जो वक्त के ख़िलाफ़ एक जंग था। फरमाया, जाओ पूरी ताकत से घोड़े दौड़ाओ। रोज़ा खाक के मकाम पर तुम्हें एक ऊँट सवार औरत मिलेगी, उसके पास मुसलमानों की तबाही का एक ख़त है, वो ख़त उससे छीन कर लाओ। ज़रा मंज़र का तसव्वुर करें, 3 अरबी घोड़े मदीना की गलियों से तूफ़ान की तरह निकले। हज़रत अली की क़यादत में ये शाह सवार सहरा की रेत को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके घोड़ों के सुमों से चिंगारियां निकल रही थीं। सूरज की तपिश और उड़ती हुई रेत भी उनकी रफ्तार कम न कर सकी। अगर वो औरत किसी और रास्ते मुड़ गई, अगर वो मक्का की हुदूद में दाखिल हो गई, तो 10,000 मुसलमानों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी की खबर गलत नहीं हो सकती थी। मीलों का सफ़र उन्होंने मिनटों और घंटों में तय किया। आखिरकार दूर सहरा में रोज़ा खाक का इलाका नजर आया और वहां रेत के टीलों के दरमियान एक औरत अपने ऊंट पर तेजी से जा रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने घोड़े दौड़ाकर उस औरत का रास्ता रोका। घोड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतहाई रोबदार आवाज़ में कहा, रुक जाओ, नीचे उतरो। औरत घबरा तो गई, लेकिन उसने फौरन मासूमियत और ड्रामे का नाटक शुरू कर दिया। क्या है, तुम लोग कौन हो? मैं तो एक गरीब मुसाफिर हूँ, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हज़रत अली ने फरमाया, बकवास बंद करो और वो ख़त निकालो जो तुम मक्का लेकर जा रही हो। औरत ने कस्में खाना शुरू कर दी। कौन सा ख़त? मेरे पास कोई ख़त नहीं है, वल्लाह मैं तो खाली हाथ जा रही हूँ, तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले लो। सहाबा ने उसके सामान की तलाशी ली। उसके ऊँट के कज़ावे को खोलकर ज़र्रा ज़र्रा चेक किया। कपड़ों की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला। जब औरत ने देखा कि कुछ नहीं मिला तो उसका हौसला बढ़ गया। वो चीखने और रोने लगी, तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो, तुम रसूल के साथी कहलाते हो और एक अकेली औरत को सहरा में तंग करते हो, जाने दो मुझे। हज़रत ज़ुबैर और मिक़दाद ने हज़रत अली की तरफ देखा। शायद उन्हें लगा कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, शायद हम किसी और औरत को पकड़ लाए हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, अगर वो वापस चले जाते तो मक्का खबर हो जाती। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान और यकीन देखें। उन्हें अपनी आंखों पर शक हो सकता था, मगर मुस्तफ़ा की ज़ुबान पर नहीं। उन्होंने अपनी तलवार में आन से खींच ली। तलवार की चमक सहरा के सूरज की रोशनी में चमकी और औरत की आंखों में पड़ी। वो आगे बढ़े और इंतहाई जलाल में, उस गुस्से में जो खैबर के वक्त उनके चेहरे पर था, फरमाया, सुने औरत, खुदा की कसम, ना अल्लाह के रसूल झूठ बोलते हैं और ना हम भटके हैं। खत तेरे पास ही है और हम खत लिए बगैर हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे। फिर हज़रत अली ने वो तारीखी धमकी दी जिसने उस औरत के आसाब तोड़ दिए। अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो खत खुद निकाल कर हमारे हवाले कर दे, वरना कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में अली की जान है, मैं तुझे बरहना करके तेरे कपड़े उतार कर तेरी तलाशी लूँगा और फिर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जब उस औरत ने मौत और बेइज्जती को बिल्कुल अपने सामने देखा और अली की आंखों का जलाल देखा, तो वो समझ गई कि ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये जान लेकर ही जाएंगे। वो कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, अच्छा मुंह फेर लो। सहाबा ने हया के तकाजे के तहत मुंह फेर लिया। उसने अपने बालों का सख्त जोड़ा खोला, बालों को बखेर दिया और उन घने बालों की जड़ों के दरमियान से वो तय किया हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाला। ये लो खत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ख़त लिया और बरके रफ्तारी सहरा की हवाएं चीरते हुए वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का मंजर, तमाम बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, सांसें रुकी हुई हैं। ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लाकर दिया गया। ख़त खोला गया, उस पर मोहर लगी थी, पढ़ा गया, हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ से कुरैश के नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करने वाले हैं। मस्जिद में मौत का सा सन्नाटा छा गया।
सब की नज़रें हातिब बिन अबी बल्ता पर जम गईं। ये कोई मुनाफिक नहीं था, ये रसूलुल्लाह का करीबी साथी था। ये वो था जो हर जंग में साए की तरह साथ रहा। आज उसने दुश्मनों को मुखबरी कर दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी रगों में इस्लाम की गैरत दौड़ती थी, उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो अपनी जगह से उठे, अपनी तलवार का दस्ता सख्ती से पकड़ा और गरज कर बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। उसने अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनों के साथ खुली खयानत की है। मौत हातिब के सर पर मुंडला रही थी। जंगी कवानीन के तहत गद्दारी की सज़ा मौत के सिवा कुछ नहीं थी। हज़रत हातिब काँप रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी पर जो रहमतुल्लाहिल आलमीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को रोका और इंतहाई शफ़क़त और सुकून से हातिब की तरफ देखा। फरमाया, ए हातिब, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस काम पर किस चीज़ ने मजबूर किया? ज़रा हातिब का जवाब सुने। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई झूठा हलफ नहीं उठाया, बहाने नहीं बनाए। उन्होंने रोते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में जल्दी फैसला ना कीजिए। खुदा की कसम, मैंने अपना ईमान नहीं बेचा, मैं काफिर नहीं हुआ। मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत आज भी इतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन मैं कमज़ोर पड़ गया था। यहाँ मौजूद तमाम मुहाजिरीन के रिश्तेदार मक्का में हैं, जो उनके घर वालों की हिफाजत करते हैं। मेरा वहाँ कोई ख़ानदान, कोई कबीला नहीं है। मेरे बच्चे और मेरी बीवी वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मुझे डर था कि जब जंग होगी तो कुरैश इंतकाम में मेरे बच्चों को मार डालेंगे। मैंने सोचा कि अगर मैं उन पर यह मुखबरी का एहसान कर दूं तो शायद वो इसके बदले मेरे बच्चों को जिंदा छोड़ दें। या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ एक बेबस बाप की कमजोरी थी, ये इस्लाम से गद्दारी नहीं थी। सबकी नजरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे पर जमी थीं। क्या फैसला होगा? कानून कहता है कि गद्दार को कत्ल कर दो, जज्बात कहते हैं कि माफ कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में सच्चाई को पहचान लिया। आपने तमाम सहाबा की तरफ देखकर फरमाया, उसने तुमसे सच बोला है। हजरत उमर अभी भी गुस्से और जज्बात में थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, लेकिन उसने दुश्मन की मदद की है, उसने हमारी जानें खतरे में डाली हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी और अजीम जुमला कहा जिसने क़यामत तक के लिए सहाबा का मुकाम मुतय्यन कर दिया। आपने हज़रत उमर की तरफ देखा और फरमाया, ए उमर, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हातिब अस्हाबे बदर में से है? ये उस दिन हमारे साथ बदर की मैदान में लड़ा था जब हम सिर्फ 313 थे। और तुम्हें क्या खबर, शायद अल्लाह ताला ने अहले बदर को आसमानों से झांक कर देखा हो और फरमा दिया हो कि ए बदर वालों, जाओ, तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दी है। अल्लाहु अकबर। ये सुनना था कि जलाल वाले उमर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, तलवार हाथ से छूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की नज़र कहाँ तक है और पिछली कुर्बानियों की अल्लाह के यहाँ क्या कद्र है। हज़रत हातिब की जान बच गई। अल्लाह ने उनकी सच्चाई और उनकी पुरानी कुर्बानियों बदर की वजह से उनकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी। इस वाक़े के बाद जब इस्लामी लश्कर मक्का में दाखिल हुआ तो वही हातिब बिन अबी बल्ता सबसे अगली सफ़ों में अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे थे ताकि अपनी इस कमज़ोरी का कफ़ारा अदा कर सकें। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ तारीख़ का एक बाब नहीं, ये इंसानी नफ्सियात का सबसे बड़ा आईना है। इससे हमें पता चलता है कि इंसान कमज़ोर है। बड़े से बड़ा नेक इंसान भी कभी कभी औलाद की मोहब्बत में माल के डर से फिसल सकता है। जब सहाबी रसूल से गलती हो सकती है तो हम और आप क्या चीज़ हैं। दूसरा सबक सच्चाई की ताकत है। अगर हातिब उस दिन दरबार नबी में झूठ बोलते तो शायद मारे जाते। सच ने उन्हें बचा लिया। और सबसे अहम बात, अपनी पुरानी नेकियों को संभाल कर रखें। हजरत हातिब की बदर की शिरकत ने उन्हें मौत से बचा लिया, इसलिए नेकियां करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी छोटी सी नेकी मुश्किल वक्त में अल्लाह के गजब को रहमत में बदल दे। अगर आपको ये सनसनीखेज और ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक दे और दुनिया आखिरत में हमारी पर्दापोशी फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।